Hello and welcome to MPS Academy, and this is Class 7 Civics Chapter 3 second lecture, and I am Vijay Kumar Chaudhary. So dear students, you may have studied the first lecture of gender inequality, and today this is the final and second lecture of gender and inequality. We are here, means the gender based inequality in our country and all over the world. We are talking about that. The first one is natality inequality. Now, what is the meaning of natality? Natality का मतलब होता है जन्म दर. Okay, birth rate. In this type of inequality, a preference is given for the boys over girls that many male dominated societies have gender inequality can manifest itself in the form of the parents wanting the newborn to be a boy rather than a girl. There was a time when this could be no more than a wish, a daydream, or a nightmare, depending on one's perspective. But with the availability of modern techniques to determine the gender of the fetus, sex selective abortion has become common in many countries. It is particularly prevalent in East Asia, in China, South Korea in particular, but also in Singapore and Taiwan, and it is beginning to emerge as a statistically significant phenomenon in India and South Asia is as well. तो जन्म दर में जो असमानता होती है, इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है हमारे समाज में, या और भी बहुत सारे ऐसे पुरुष द्वारा जो डोमिनेटेड समाज होते हैं उसमें हमने देखा है कि जब बच्चे की जन्म की बात होती है तो ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि लड़का हो लड़की ना हो। और आजकल तो बहुत सारे तकनीक भी आ गए जिससे ये पता लगा लिया जाता है कि लिंग क्या है, और उस आधार पर एबॉर्शन भी कराया जाता है, और ये सब बहुत ही कॉमन है ईस्ट एशिया, चाइना, साउथ कोरिया में खासकर, और हमारे भारत में तो अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। आगे है प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी। जी हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रमोशन इन वर्क एंड ऑक्यूपेशन, women often face greater handicap than men. A country like Japan and India may be quite egalitarian in matters of demography or basic facilities, and even to a great extent in higher education. And yet, progress to elevated levels of employment and occupation seems to be much more problematic for women than for men. The example of employment inequality can be explained by saying that men get priority in seeking job than women. तो जो रोज़गार के क्षेत्र में जहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो है पुरुषों के मुकाबले काम पाना या पेशा अपनाना बहुत ही मुश्किल है। जापान या फिर इंडिया जैसे देशों में देखें जहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ है या फिर बहुत सारे एक्सटेंट है हायर एजुकेशन के, बहुत फैलाव है, फिर भी महिलाओं का ऑक्यूपेशन में आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है पुरुषों के मुकाबले। उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि महिलाओं की नौकरी पाना मुश्किल है और पुरुषों को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। अगला है ऑनरशिप इनइक्वालिटी। इन मैनी सोसाइटीज़ द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी वेरी अनइक्वल। इवन basic assets such as homes and lands may be very asymmetrically shared. The absence of claims to property cannot only reduce the voice of women but also make it harder for women to enter and flourish in commercial, economic, and even some social activities. This type of inequality has existed in most part of the world, though there are also local variations. For example, even though traditional property rights have favored men in the bulk of India, women are not. अगली असमानता है वो है मालिकाना हक। इसमें भी महिलाओं के प्रति जो है भेदभाव किया जाता है। जहाँ तक हम देखते हैं कि बेसिक एसेट्स जैसे घर, ज़मीन, है ना, ये इसकी जो बंटवारा होती है बिल्कुल सिस्टम में नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता। द एब्सेंस ऑफ क्लेम्स टू प्रॉपर्टी कैन नॉट ओनली रिड्यूस द वॉइस ऑफ वुमेन। अब महिलाएं भी अपने प्रॉपर्टी के क्लेम को क्लेम नहीं करती, जिसके वजह से ये अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और भारत में तो ट्रेडिशनल राइट्स ही बहुत ज़्यादा है, यानी पारंपरिक जो अधिकार है उन अधिकारों के वजह से महिलाएं सोचती है कि भाई ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरे घर के भाई का है, चाचा का है, दादा का है, बाबा का है। इस तरह से लोग जो है महिलाएं अपने अधिकार के लिए आवाज़ तक नहीं उठाती, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। सो टिल नाउ वी हैव टॉक नैटेलिटी इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी एंड ऑनरशिप इनइक्वालिटी, एंड दिस इज़ हाउस होल्ड। ये सबसे ज़्यादा होता है घरों में। कैसे? देर आर ऑफन इनफ बेसिक इनइक्वालिटीज़ in gender relations within the family or the household, which can take many different forms. Even in course in which there are no overt signs of anti-female bias,
in say survival of non-preference or education, or even in promotion to higher executive position. The family arrangements can be quite unequal in terms of sharing the burden of housework and childcare. It is, for example, quite common in many societies to take it for granted that while men will naturally work outside the home, women could do it if and only if they could combine it with various inescapable and unequally shared household duties. This is sometimes called division of labor. The woman could be forgiven for seeing it as accumulation of labor. The reach of this inequality includes not only unequal relations within the family but also derivative inequalities in employment and recognition in the outside world. Also, the established fixity of this type of division of accumulation of labor can also have far-reaching effects on knowledge and understanding of different types of works in professional circles. यानी घरों में जो असमानताएं होती है वो कैसी होती है, जो बेसिक जेंडर रिलेशंस होती हैं, जैसे महिला है, पुरुष है, भाई है, बहन है, इनके बीच भी बहुत सारा भेदभाव होता है और इसके वजह से बहुत सारी एंटी फीमेल बायस जो हैं वो खड़े हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं घर में सारा काम करती है. ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो है वो बाहर काम करेंगे और महिलाएं घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी. और डिवीज़न ऑफ लेबर की बात जहाँ करते हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर प्रॉपर नहीं होता. घर में अधिकांश, अगर छुट्टी भी है तो आप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर काम जो है महिलाएँ ही करती हैं, घर की सारी कामें, और पुरुष जो है बाहर काम करते हैं. एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखें तो वो सारा काम पुरुष करते हैं. और इसके बाद महिलाओं के अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है तो महिलाएं काम तभी कर सकती है जब वो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सके, यानी हाउस होल्ड कोर्स और प्लस अपना बाहर का जॉब. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें जॉब करने नहीं दिया जाता. तो ये सब जो है असमानताएं घर में भी देखने को मिलती है. आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आप अड़ोस पड़ोस में भी देख सकते हैं. ओके, आगे हम देखेंगे कि इन असमानताएं, इतनी सारी असमानताएं हैं तो इन असमानताओं को दूर कैसे किया जाए, सरकार ने क्या किया, समाज ने क्या किया. ठीक है. और अगर इसी तरह की असमानता बढ़ती रही तो महिलाओं की जो नॉलेज है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफेशनल सर्कल्स है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है. अब देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट. तो सबसे पहला है इक्वल राइट्स, दूसरा वुमेन एजुकेशन, तीसरा है स्टेप सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, RMK, दैट मीन्स राष्ट्रीय महिला कोष, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002 एंड पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडीज़. तो ये सारी जो आपने चीज़ें देखी, इन सभी चीज़ों की वजह से जो है महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी महिला अधिकारों की संरक्षण की जा रही है. तो हम एक एक करके बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इक्वल राइट्स क्या है, कैसे उनको इक्वल राइट्स दिया जा रहा है, वुमेन एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिर स्टेप यानी सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ राष्ट्रीय महिला कोष, हाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002 हेल्प्स द वुमेन, एंड हाउ पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडीज़ हैव हेल्प्ड वुमेन ग्रो अप एंड कम अप इन द सोसाइटी. तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल राइट्स की. ओके, तो इक्वल राइट्स यानी गवर्नमेंट ने इक्वल राइट्स कैसे दिया. तो बिफोर इंडिपेंडेंस वुमेन वेर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल राइट्स, बट एट प्रेजेंट ऑल वुमेन हु आर ऑफ द एज ऑफ 18 years और above have been given the right to vote like those of men. The government of India has passed the Hindu Code Bill and Kamla Act to give equal share to the women in property of their parents. तो स्वाधीनता से पहले महिलाओं को जो है वोट तक देने का अधिकार नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था. लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार है. सरकार ने हिंदू कोड बिल और कमला एक्ट भी पास किया है. तो ये हिंदू कोड बिल और कमला एक्ट क्या है कि पिता के संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर इक्वल राइट्स मिलना चाहिए. अब ये अलग बात है कि लड़कियां इसके लिए वॉइस नहीं करती, अपना आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन नॉर्मली ये भारतीय संविधान में ये कानून है, हिंदू कोड बिल और कमला एक्ट के तहत जो माता पिता हैं उनके संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार उनके जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, सबको बराबर अधिकार मिले. नेक्स्ट इज वुमेन एजुकेशन. इलिटरेसी अमॉन्ग द वुमेन इज़ द बेसिक कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. बिल्कुल सही बात है. महिलाओं में जो अशिक्षा है ये मतलब जेंडर इनइक्वालिटी की, यानी लिंग भेद
या लिंग असमानता का सबसे प्रमुख कारण है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्फसाइजिंग ऑन वुमेन एजुकेशन. For this, many new schools and colleges have been opened exclusively for women. To promote education among women, two most important schemes, that is Sarv Shiksha Abhiyan and Mahila Samakhya, have been implemented. तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने महिला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और इसके लिए उन्होंने नए नए विद्यालय, नए नए कॉलेजेस खासकर महिलाओं के लिए खोले हैं और महिलाओं के बीच एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्कीम है वो उन्होंने लागू किया है, जिसमें पहला है सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा है महिला समाख्या। तो सर्व शिक्षा अभियान में सब शिक्षा सबके लिए, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें आता है। और महिला समाख्या है तो महिला समाख्या में केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अलग हायर एजुकेशन देने के लिए ये काम होता है। आगे हम बात कर रहे हैं सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की स्टेप। तो अंडर द प्रोग्राम ऑफ सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्पेशली टू वुमेन इन न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, हैंडीक्राफ्ट्स एट्सेट्रा। यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है स्टेप के माध्यम से। स्टेप के माध्यम से महिलाओं को नई नई तकनीकों के बारे में, खेती के बारे में, दुग्ध उत्पादन के बारे में, सब्जी उत्पादन, मछली पालन, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में उनको सिखाया जाता है। तो इन सभी वजहों से जो है महिलाएं उभर के अब सामने आ रही है, समाज के मुख्य धारा से जुड़ रही है, अब घर में ही बैठी नहीं रहती। अब जो है लगभग समाज में जेंडर इक्वालिटी की बात होती है और दोनों, महिला चाहे पुरुष, दोनों बराबर इंसान है, दोनों इंसान, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों बराबर के दर्जे में हैं। आगे है महिला राष्ट्रीय महिला कोष RMK। तो राष्ट्रीय महिला कोष वॉज established to sanction credit to women. Since its inception in 1993, the RMK has sanctioned credit worth rupees 103.50 crore. तो महिला कोष जो है महिलाओं को कर्ज देना, यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसी को बिजनेस करना है, किसी को कुछ करना है, तो महिलाएं जो हैं राष्ट्रीय महिला कोष से कर्ज लेकर जो है अपना कार्य चालू कर सकती है। और 1993 में ये शुरू हुआ था राष्ट्रीय महिला कोष और तब से लेकर 113.50 करोड़ दे चुके हैं। लास्ट वन इज प्रोटेक्शन, नॉट द लास्ट, सेकेंड लास्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002, यानी घरेलू हिंसा, घर में मारपीट होना, ये घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। द इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर हायर अमंग द लो सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, SEC। तो SEC यानी सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, जो लो निचले तबके के लोग हैं, उनके अंदर घरेलू हिंसा की जो बातें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। There are various instances of inebriated husband beating up wife, often leading to severe injuries. कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर क्रोधित पति या फिर नशे में जो पति है वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीट दिया, जिसकी वजह से बहुत गहरे घाव हो गए। Domestic violence is also seen in form of physical abuse and not only physical, mental abuse as well. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 came into force on October 26, 2006. ओके तो अक्टूबर 26, 2006 से ये कानून देश में लागू है। और आगे है पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडीज़। By the 73rd and 74th constitutional amendments, 1/3 of seats have been reserved for women in local bodies. लोकल बॉडीज़ की बात अगर हम करते हैं, लोकल बॉडीज़ में हो गया स्टेट गवर्नमेंट या फिर पंचायत, इस तरह के जो म्यूनसिपैलिटीज़, तो इन सभी में 73वें और 74वें संविधान के संशोधन में 1/3 सीट, मान लो अगर 9 सीट है कहीं पे तो 3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। देयर इज़ ऑल्सो अ प्रपोजल टू प्रोवाइड 1/3 सीट्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली has been passed by the parliament. This is indeed a great step towards the upliftment of women in India. तो महिलाओं के लिए पार्लियामेंट यानी संसद में भी 1/3 सीट रिजर्व है। तो कुल मिला के ये सब कार्यक्रम जो है सरकार कर रही है जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और इन सब स्कीम के वजह से महिलाएं निश्चित तौर पे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो, ये लेसन यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको कोई मन में सवाल हो या कोई परेशानी हो तो उसका वीडियो बनाएंगे और दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह आप वीडियोस देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, किताबें ख़रीदें, बुक्स को भी पढ़ें और क्वेश्चन आंसर्स को भी बनाने का प्रयास करें और किसी भी तरह की कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। सो थैंक यू, बी सेफ एंड बी प्रोटेक्टेड, बाय बाय, मीट यू सून।